let me give you the brief about the basic forex. ठीक है, मैं forex आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, तो Yes, at least please. आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। और ये चीज कैसे है ना, forex का कंसेप्ट सेम नहीं है जिस तरह से आपका ये चलता है, अपना नॉर्मल इंडियन मार्केट चलता है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। उसका जो लॉट साइज होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूएशन होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। Right. So I'm just trying to give you a little bit background about it. So what is the forex? When you're talking about the forex is nothing but the transactions between the two currencies. That means if we going to do the exchange between the India rupees and the USD, so whatever the variations is happening between these two currencies, we're going to trade and we're going to get benefited on it. The more variation and volatility will happen, and if you are on the right trend or right track, you will get benefit. So that's how this happen. And so what is the forex? Okay, it is a foreign exchange trading. All right, in other words, it's called the foreign currency exchange. Okay, what is the currency exchange difference happen? We try to take the benefit out. Okay, so let's try to understand this way. All right, suppose today's INR with USD price is 82 rupees 20. Okay, take the example. All right, and now your exchange is about 8220, right? If you want to take the 1 USD and you want to earn for the 100 USD. If you have a 100 USD, then your INR value would be 8,220, correct? Because it's a 1 USD is equal to 82.20. Now suppose your USD has increased. Okay, USD value is increased. मतलब क्या हुआ? See, that means your INR would be like 82,550. मतलब सपोज आपका 30 पैसे से इंक्रीज हो गया है आपका यूएसडी का चार्जेस। आर यू गेटिंग इट? मतलब आपका जो करेंसी वैल्यूएशन है, आपने 82.20 में आपने सपोज खरीदा और वो प्राइस आपका 82 रुपीज 50 पैसे हो, समझ रहे हैं? So now you think how much you can variation can happen. बट इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है बसंत जी, वो 30 रुपए दिख रहा है, जबकि 3,000 लिख रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो समझ में आ गया मुझको। हाँ, आपका जो है 8.20 आपका 30 पैसे बढ़ा इधर ना, 30 पैसे हाँ। बढ़ा, 30 पैसे बढ़ा तो 30 into 100 में 3,000 बढ़ गया ना। 30 पैसे बढ़ा तो 300 रुपये बढ़ा। हाँ, 300 रुपये into यस, 30 रुपये बढ़ा, ये 30। तो आपका क्या हो गया? तो नाउ इसमें आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, मतलब 8250 आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, 30 रुपीज का गेन हो गया, दैट इज योर गेन। तो ये ऐसे इक्विवेलेंटली आपका एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो आपका प्राइस ऐसा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट वोलेटिलिटी इन योर मार्केट राइट नाउ, तो ये अगर आपको समझना है तो मार्केट मेकर who are the players in the forex sector? It's your market maker which are actually making a market, then manipulators are nothing but who are investing in more money in your forex section, then your speculator who can think that market will go up now, and your central banks or RBI, US federal bank, they'll come into it, and retail trader like us. So they are the players in the forex. Okay, any question, any understanding? basically they are this money exchangers which have open shop in like malls, etc. So there is any regulation for that? Yes, कैसे they करते are हैं? regulated. See now what happened, every time, so now I'm telling you, when you do the exchange, right, it is a exchange trading, right, it is a exchange traded, right?
now you are trading on NSE and it is a globally. This currency trading is happening globally. 24 by 5 days. Saturday, Sunday off. So all exchange are open and this currency exchange is happening across the globe. Okay. So what is happening? Suppose today I'm into the US market. So now mostly the US market closing they consider as a final price. And on that price, that time whatever the USD and INR rate being fixed, that is the exchange traded price. And but there is always a buy and sell price. They are always give the difference between the 30 to 50 पैसे. Okay? तो अगर आप 20 पैसे में खरीदते हो तो आप 30 पैसे से मतलब you have to pay back on the 50 पैसे. ऐसे बेचता है ना वो. Otherwise profit कहाँ मिलेगा? 30 पैसे उसको मार्जिन या प्रॉफिट हो. Market या profit हो. Correct? And this whatever the you saying in airport and all, right? It is they have added more to it. They need to see we have an exchange. Further to that, because they are tied with the bank. Because बैंक का क्या रहता है कि बैंक एक प्राइस से लेता है दूसरा प्राइस से लेता है. Because you cannot do directly. अगर आपको ऐसे रिटेल ट्रेड अगर मुझे आज कस्टमर I want to buy my money or I want to exchange my INR to any other currencies. Either I have to go to the bank or the authorized person, right? Authorized dealers. I cannot go anywhere in the market and ask for this. Okay, मेरे इसके बगल में दे दो. No one can give that because they are not authorized to it. Yes. Because bank are doing it because they have a code for it. पर हर बैंक का चार्जेस अलग होता है because they want to keep the profit out. और अपना जो INR का जो वैल्यूज निकलता है ये सब कुछ हमारे पास कितने स्टॉक है. मतलब INR अगर मेरे को USD है तो USD का वैल्यूएशन मेरे पास कितना मतलब कितना मल्टीप्लिकेशन ऑफ USD आई एम हैविंग इससे मेरा INR का वैल्यू निकलता है. अगर सपोज मेरा पास काफी ये हो गया है USD मेरा पास है मेरे पास देन मतलब मेरा INR का मैं वैल्यू कम करूंगा. दैट मींस माय INR वैल्यू इज एप्रिशिएटिंग. अगर आपका मेरा पास डेप्थ बहुत ज्यादा है USD को आई हैव टू पे बैक टू US many मतलब USD मुझे बहुत देना है then my INR value will be more. मतलब मेरा INR जो है वो डेप्रिशिएट कर. दोबारा बताओ ये कुछ कंफ्यूजिंग है. ओके कैसा होता है सपोज मेरे पास काफी INR है सॉरी USD है. देयर आर आई हैव अ लॉट ऑफ USD विद मी. दैट मींस मेरा पास USD का इतना है कि मेरा INR उसके वजह से एप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि आई हैव एनफ USD. नहीं USD मेरे पास सपोज 5000 USD है या 10,000 USD है. नहीं वो ऐसा मत करो. आप वैसा नहीं पकड़ो. ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ. RBI के पास कितना USD है. ओके ओके. इट इज अ कंट्री टू कंट्री राइट. सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक. समझ गया. हाँ वो तो जिसके पास जितना डॉलर है वो उतना मतलब उसका वैल्यूएशन उतना बढ़ जाएगा. अब ये कैसा है कि सपोज मेरा आई नीड टू पे बैक टू मेनी ऑफ माय डेट टू ISD सॉरी टू USD टू मेनी अदर कंट्रीज. मतलब मेरे को USD बहुत चाहिए और मेरा पास उतना इनफ है ही नहीं. देन क्या होगा कि मेरा जो INR का वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगा क्योंकि हमें USD खरीदना पड़ेगा ज्यादा क्योंकि मेरे को कमीशन देना पड़ेगा उतना ओवर एंड अबव. नहीं मेरा INR उतना इक्विवेलेंट देना पड़ेगा ना मुझे कहीं तो भी तब जाके तो मिलेगा राइट इतना USD. तो उससे क्या होगा हमारा जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाए. आज इंडिया करेंसी क्यों उतना डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है विद एज कंपेयर टू USD क्योंकि हमारा मैक्सिमम मेजर जो ट्रांजैक्शंस है इट्स हैपनिंग आवर ओन करेंसी राइट. जैसे ऑयल हो गया because oil is the more consumer thing but now we are not doing in the US it is mostly INR. so ये exchange होता है और same thing happening on trading. इससे क्या होता है कि जितना भी वेरिएशंस होगा उतना मेरे को कितना प्रॉफिट मिल रहा है दैट आई हैव टू गेट. ठीक है. तो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज. और ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है. मतलब अगर आप इसका इन्फ्लेशन देखोगे तो धीरे धीरे जाता है राइट.
लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होता है, एक दिन में एक बार फ्रैक्चर होता है, फिर नीचे आता है, मनी थिंग है. So I mostly do trading between the gold and USD. It is very volatile and it's a money making. You can make a money fast and you can lose the money fast both way. So वो उस तरह से, ठीक है. So any question here? No, I'm true. Okay. Anybody else? KG. ठीक है. All right. So इसमें देखिए there are multiple things, but we know that there are only two trends. एक होता है अप ट्रेंड, दिस वी ऑलरेडी नो. अनदर थिंग इज योर डाउन ट्रेंड एंड अनदर इज द साइडवेज. ये हमको सबको पता है, करेक्ट. द सेम थिंग. अप ट्रेंड मतलब इट इज गोइंग अप एंड अप अप अप. डाउन मतलब वो नीचे 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 आ रहा है करेंसी का वैल्यू. और साइडवेज यू नो इट इज रेंजिंग, मतलब एक रेंज पे 20-30 पॉइंट या 50 पॉइंट में वो कंटिन्यूअस अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. तो दैट इज द रेंज ऑफ, दैट इज कॉल्ड साइडवेज. ये ट्रेंड फॉलो होता है हर जगह, ही फॉलो, दैट इज द, ठीक है. नाउ टाइम फ्रेम. अभी इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजेस है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्कैल्पर बोलते हैं, इसको हम लोग इंट्राडे बोलते हैं, और एक तो स्विंग होता है, ठीक है. तो ये स्कैल्पर क्या होता है? स्कैल्पर मतलब कि इमीडिएटली पैसा डाला, विद इन अ सेकंड मार्केट फ्लैक्चुएट हुआ, पैसा निकाला, बाहर चला गया. That is called scalper. मतलब क्या है कि आपने हेवी वॉल्यूम डाला, if fluctuate for 20-30 points, you gain a huge profit, come out from the market. Done. That is called scalping. और स्कैल्पिंग के लिए क्या करना पड़ता है? You should know कि मार्केट कब गिरने वाला है, कब चढ़ने वाला है. नहीं तो क्या होगा, पूरा पैसा डूब जाएगा. आपका अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया तो you going to lose all the money. लेकिन अगर आपका ट्रेंड में चला गया, then you are a king. Multiple time I am being a king, multiple time I am being a peer also. डूब चुका हूँ. So that's how it happens. So scalping is very nice. और intraday, those people who are only into it, मतलब जो ट्रेडिंग करते रहते हैं दिन भर में, they are good for it. But for us, we cannot sit on computer and we can do that. वो नहीं हो सकता है. We can go either scalping or swing. स्विंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको रख दो एंड देन यू कैन अर्न मनी. तो मैं इसमें क्यों बताऊंगा कि दिस इज गुड, ये मेरे को बहुत फायदा दिया है स्विंग का. अगर आपको पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, देन इट इज अ वेरी नाइस ऑप्शन. इससे क्या होता है कि आप ट्रेंड के साथ रहते हो, और इफ यू कैन कीप फॉर एटलीस्ट, इफ यू बाई लो एंड सेल हाई, मतलब आपको पता है कि दिस इज द बॉटम. ये पता चल जाएगा जब मैं एक दिखाऊंगा आप लोगों को चार्ट में, यू विल अंडरस्टैंड. जब आप बॉटम में खरीदोगे और आपको पता है दिस प्राइस इज नॉट गो बिलो दैट बेस्ड ऑन आवर हिस्टोरिकल डेटा, अगर वहां पर आपने बड़े क्वांटिटी खरीद लिया एंड इफ यू हैव ए पेशेंस टू वेट, तो विद इन अ मंथ टाइम आप लाखों से करोड़ों कमा सकते हो. ये बिग टाइम फ्रेम स्विंगर का है ना? ये कौन सा? ये जो है बिग टाइम का स्विंगर एंड इंट्राडे, इन सब का है. तो मैं बिग टाइम क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या है. नहीं, ये जो बिग टाइम फ्रेम है, इंटरडे में बिग टाइम फ्रेम में होगा या स्विंगर में होगा? दोनों में चलेगा. ओके, दोनों में चलेगा. स्कैल्पर में आपने को क्या करना पड़ता है? M1, M5, M50 मतलब, या ये है मिनट 1, मतलब 1 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट. इसमें जो भी वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है. अगर आपको इंट्राडे करना है तो आवर 1, आवर 4, डे 1, मंथ 1, सिंपल. ठीक है. तो ये चीजें क्या होता है, दिस I earned almost 1.5 lakhs with the swinger and intraday. Within how much time frame? कौन सा? 1 month. एक महीने में. और कितना पैसा लगाया था? इसको लगाया था 1000. 1000 से 1 लाख रुपए. ये इसमें कैसा, इसका लीवरेज बहुत ज्यादा होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू, फॉरेक्स में बहुत चीजें हैं जो अगर आपको पता है तो मैं बोला ना लाखों से करोड़ों बना सकता. ये से 1 लाख. हाँ, 1000 में 1 लाख. मैं आपको सब सुनकर अजीब लगता है ना, मैं बता दूं. वो वही बताओ कैसे. ये तो फिर, अरे यार, ये तो जादू है. हाँ, फॉरेक्स में ही जादू है. जिसको पता है वो लाखों करोड़ों कमा सकता है, लेकिन गवा भी सकता है. मैंने गवा भी है.
नहीं, 1000 रुपए ठीक है, 1 लाख का अगर मैं है आपको तो बताता हूँ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द 3000 एंड इन 3000 यू कैन अर्न 30,000। यस 3000 आप लगाओगे, अगर आप सही से खेलोगे, मतलब ये इंट्राडे में खेलना पड़ता है। अगर किसी फॉरेक्स में क्या होता है, 3 सेशन होता है, एक एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन एंड यूएस सेशन। क्या होता है, ये 24 रन होता है। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि 9:30 बजे खुला और 3:30 बजे बंद हो गया, राइट। हाँ पर ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि मॉर्निंग को पहले आपका जापानीज मार्केट ओपन होता है, वो चालू रहता है, फिर इंडियन मार्केट ओपन होता है, फिर आपका यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, वो यूरोपियन मार्केट खत्म होता है, आपका यूएस मार्केट ओपन होता है, फिर सर्कल फिर से खत्म होता है, जब ये सर्कल ऐसा चालू हो जाता है, राइट। तो ये जो सर्कल चालू होता है, इससे क्या होता है, सपोज आपने सुबह खेलना शुरू किया, सुबह में कुछ लॉस किया, आपको शायद दोपहर में तक आपने रिकवर कर लिया यूरोप मार्केट। अगर आपका अच्छा रहा तो यूएस मार्केट में आपको ज्यादा आता है, ज्यादा वोलेटिलिटी आपका यूएस मार्केट में, क्योंकि वहां पर ज्यादा ट्रेडिंग होता है और फ्लक्चुएशन इतना होता है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट निकल जाता है। एक बार तो मैंने क्या किया था, एक दिन ऐसे ही बैठा था, सिर्फ 500 मैंने क्या किया था, पूरा लगा दिया था। 500 कितना लगा था, 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज मतलब आपका $100 का मैंने बेट लगा दिया, और विद इन 20 मिनट्स में मेरे को 50,000 हो बढ़ जैसे 50,000। डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कैसे वो नीचे आता है डायरेक्ट। वो उसमें मोमेंटम में मिल गया तो यू आर प्रॉफिट। लेकिन क्या होता है, मैंने गवाया भी है, मतलब एक टाइम पे मैंने ऐसा पैसा लगाया कि वो मार्केट ऐसे जाते हुए फटक से निकल गया और मेरा उस फट से पूरा पैसा निकल जीरो गया। हाँ, वो मार्केट रुकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, अगर स्टॉप लॉस लगाया लेकिन मार्केट अगर वोलेटिलिटी में आ रहा है तो स्टॉप लॉस को तोड़ के वो नीचे जाके कहीं तो रुकेगा, क्योंकि वो सर हिट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब सी आपका जैसे ऐसा छप्पड़ फाड़ के देता है ना, छप्पड़ ले भी लेता है। अच्छा वो स्टॉप वो आप लगा नहीं सकते, ओके, लगाओगे तो फायदा नहीं है। लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई जब वो फास्ट जाता है ना, तो आपका सिस्टम भी उतना सेकंड में काम नहीं कर पाता है। आपको हाई एंड सर्वर चाहिए, अब आपको 2-4 मिनट पहले करना पड़ेगा वो। नहीं आप लगा के भी रखोगे ना, तो इवन आपके जो नाउ यू नीड टू डू इट विद सम एक्सचेंज, राइट। जैसे जीरोधा वगैरह हो गए, यहाँ पर ऑक्टाएफएस होता है, उसके थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है ना, तो एक को करते करते वो कभी कभी संभाल नहीं पाते, मतलब जो एक्सचेंज अपना जो ब्रोकर है वो संभाल नहीं पाते। ओके इस पे क्या होता है कि अपना जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमको लिवरेज नहीं मिलता है, यहाँ पर लिवरेज मिलता है। एक्चुअली हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं लाखों डॉलर्स की, लेकिन हमें पे करना पड़ रहा है ओनली 8,000, बिकॉज द लिवरेज इज आइदर 500 टाइम्स और 2,000। एक्चुअल कैश का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वी आर प्लेइंग विद द लिवरेज, क्योंकि हमें जो ब्रोकरिंग हाउस है दे आर गिविंग द लिवरेज, और वो लिवरेज का जैसे फायदा ई मार्जिन, जैसे स्टॉक में ई मार्जिन है उसी तरह। हाँ, हम मार्जिन में ही खेलते हैं। इधर हम 8,000 लगाए तो 8,000 का मार्जिन, तो लेकिन हमारा उधर मार्जिन क्या होता है, अभी आप बैंक निफ्टी में करोगे या फिन निफ्टी में या तो एक निफ्टी 50 में करोगे, तो आपका क्या होता है कि 15,000 लगाओगे, क्योंकि वो लॉट साइज रहता है, उसका मल्टीप्लिकेशन रहते हैं, करेक्ट। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका वहाँ लिवरेज कुछ नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोकर विल गिव यू द लिवरेज कि आप मिनिमम अमाउंट से आपको मैक्सिमम क्वांटिटी खेल सकते हो। अगर आपका लक अच्छा है तो वहां से आप लाखों बना सकते। तो मैंने आपको कुछ टाइम भेजा था, राइट। मैं कुछ तो क्या करता हूँ, $5 $10 का खेलता हूँ, और कभी कभी $10 निकाल लेता हूँ, कभी कभी $2 का खेलता हूँ, $10 निकाल लेता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ, जस्ट टू चेक कि कैसे चल रहा है। मैं पहले छोटा छोटा, और इसमें एक चीज बताता हूँ, आपको पहले से पैसा देके खेलना नहीं है। To understand it, they have a virtual platform as well. This is same thing. आपको कुछ नहीं करना है, एक तो मार्केट में ही बिना पैसे का खेल सकते हो, जो कि बाकी जगह पे अलाउ नहीं है। अपना जैसा क्या होता है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, but that is again not right way. But यहाँ पर जो भी ब्रोकर हाउस है, they will give you a dummy account. You can keep the money, play with it. The way the market is, working, you can use your strategy and check that how it is working. Your money will not be lost, and after that you have a confidence, then you can cut the money. बढ़िया। It has, you call the complex. ठीक है। सो अभी ये टाइम फ्रेम पे हम लोग कम करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है कि पाइप, यहाँ पर पाइप का कंसेप्ट होता है। जैसा हम लोग लॉट साइज यहाँ करते हैं ना, यहाँ पर पाइप बोलते हैं इसको। अभी पाइप कैसा रहता है, पाइप इज नथिंग बट योर 10 पॉइंट्स, क्योंकि पाइप इज वन ऑफ द मेजरमेंट, वी नो राइट। पाइप से मेजरमेंट होता है, जैसे हम लोग यूनिट्स मेजरमेंट करते हैं केजी, वैसे पाइप भी एक मेजरमेंट यूनिट है। यहाँ पर मोस्टली पाइप से होता है, और वन पाइप इज नथिंग बट योर 10 पॉइंट्स। अभी 10 पॉइंट्स कैसे होता है, सपोज आपका वैल्यू है कि 82.20, अभी 82.20 से अगर 82.30 हो गया, दैट मीन इट इज अ वन पाइप एंड इट इज अ 10 पॉइंट्स। वन पाइप क्या, 10 पॉइंट्स। दोबारा बताइए। अभी 82.20 दैट इज योर प्राइस। अगर मार्केट अगर 82.20 से 82.30 हो गया, मतलब आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब एक पाइप का प्रॉफिट। पाइप 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 PIP, ठीक है। पॉइंट 10 इज इक्वल टू वन पाइप। हाँ, अभी इसमें लॉट साइज डिफरेंट करता है। अभी लॉट साइज का कैसा रहता है कि 0.01 क्वांटिटी एक लॉट होता है ना, तो यहाँ पर कैसे होता है, जहां पर हमें मिनिमम एक लॉट लेना पड़ता है, यहाँ पर माइक्रो लॉट ले सकते हैं। शुरू होता है 0.01 से, 0.01, 0.10, देन 1, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। आप छोटा क्वांटिटी से शुरू कर सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो। बट नॉर्मली अपने इंडियन मार्केट में कैसे है कि लॉट साइज आपको एक ही लेना करेक्ट, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसको माइक्रो लॉट भी आप ले सकते हो। सपोज आपको पास ओनली $50 से खेलना चाहते हो, $50 इज नथिंग बट योर 4000 रुपीज, करेक्ट। 4000 से आपको लेना है। अभी 4000 में आप कितना ले सकते हो, तो अभी 4000 में आपको मल्टीप्लाई करो कि 4000 मतलब आपके पास $550 हो गया। अभी $50 का आप ये मार्जिन निकालना है आपको। अभी 0.01 का जो अगर मार्जिन पकड़ेंगे तो ₹8 पर, $8, सॉरी 8 रुपीज ना, $8 मतलब 0.10 का $8 हो, 0.10 का 0.08 होता है ऐसा। क्योंकि मैं अगर 80 का पकड़ कर चलूं कि एक्सचेंज रेट 80 है, तो 0.1 को सिर्फ आपको $8, मतलब आपको सिर्फ $8 का मार्जिन लगेगा। तो आप सोचो 50 into 8 हो गया ना। दोबारा बताओ। अभी आपका कैसे होता है कि अगर सपोज एक्सचेंज रेट 8 है, हाँ, तो 0.01 का मतलब आप सिर्फ उसका मार्जिन जो है $8 ही दो। नहीं समझ। ओके, सपोज अभी कैसा है देखो, अभी हमारा क्या चल रहा है कि वी आर प्लेइंग विद द मार्जिन। यहाँ पर हमको मार्जिन हमारे पास है कितना, 50 $50 है हमारे पास, करेक्ट। ठीक है, $50 है, यस $50 है। तो अभी हाँ। कैलकुलेशंस अभी पीछे का कैसा है कि अगर 0.01 क्वांटिटी मतलब आपको 0.08, एक हिसाब बता रहा हूँ, 0.08 आपका मार्जिन लगेगा, और 0.01 क्वांटिटी लिया तो $8 का मार्जिन लगेगा। मतलब आप अगर ये लोगे, एक लॉट लोगे तो 8000 का आपको मार्जिन लगेगा। मतलब इट इज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, ठीक है, वो चलो फिर ठीक भी है। बिल्कुल पूरा मतलब ऐसा हो गया क्वांटिटी लॉट इनटू मार्जिन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो लिवरेज ले रहे हो ना। हाँ, आप तो मार्केट में मार्जिन लगाओगे, मतलब क्या है कि आपका जो मनी है वो मनी को कम करेगा कि उतना मनी को आपको खेलने देगा, लेकिन आपका जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट इज वेरी हाई, करेक्ट। ओके, वो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है दैट योर ब्रोकर इज टेकिंग केयर ऑफ इट, बिकॉज the broker is giving you your leverage, क्योंकि आपने अगर 1:500 लिया है, 1:2000 लिया, तो उतना का आपको लीवरेज देगा। मतलब अगर आपके पास 1 लाख है, मतलब $1000 है, तो 1000 into 2000 मतलब उतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप खेल सकते हो। समझ गया। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ पैसे अपने लगा रहा है और कुछ पैसे हमसे लगवा रहा है, मोटा मोटा। करेक्ट, मतलब मार्जिन से खेल। तो मार्जिन भी सारा जितने पैसे वो लगा रहा है उसको जाएगा या हमको जाएगा? मार्जिन तो आपका जो पैसा अकाउंट में है उतना तक कट होगा, क्योंकि वो मार्जिन जो है वो आपको उतना ही खेलने देगा ना जितना आपने पैसा डाला है। ओके ओके, हाँ हाँ, वो आप दे रहे हो ना। समझ गया। ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो कम मार्जिन में आप बहुत बड़ा खेल सकते हो क्वांटिटी में। ठीक ठीक। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है
क्यों मैं आपको थोड़ा इधर आपको जैसे मैंने बताया कि ये देखो पाइप कैसे होता है, 2 पॉइंट में मूव किया तो 1 पाइप होता है, 3 पॉइंट में मूव किया तो 10 पाइप होता है, 4 पॉइंट में मूव किया तो 100 पाइप होता है, 1000 पॉइंट मतलब आपका पूरा एक पॉइंट ही चेंज हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट 1.23754 ये लिखा जो है। मतलब 54 से 64 हो गया, जैसे मैंने बताया ना 20 से 30 हो गया, हाँ हाँ हाँ, मतलब 1 पाई हो गया। 754 से 854 हो गया, मतलब 100 पाइप्स हो गया। अच्छा मतलब अच्छा, 100 पॉइंट्स मूव किया मतलब 10 पाइज हो गया। समझ गया, ठीक है। अभी इधर 1000 किया तो फिर 100 पाइज हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया वही इधर मैंने आपको समझाया। ओके ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। अभी नाउ मेजर थिंग इज योर लॉट साइज। ये लॉट साइज समझो, इसको जो मैं बता रहा था। ठीक है, अभी कैसा होता है कि अभी हमारे पास पैसे कम है, करेक्ट? पैसे कम है मतलब हमको $50 में तो मैं 1 लॉट तो खेल नहीं सकता, क्योंकि 1 लॉट के पीछे आपको कितने यूनिट्स है, देखो 1 लाख यूनिट्स। देख लो, ये आपको 10,000 यूनिट्स, ये 1000 यूनिट्स, करेक्ट? मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 0.1 में 1000 यूनिट, लेकिन हमें तो सिर्फ मार्जिन पे खेल रहे हैं। बाकी आपको क्या कर रहा है, आपको ब्रोकर आपको लिवरेज दे रहा है। तो अभी ये क्वांटिटी कैसे डिफाइन होता है, अभी देखो 0.01 में आपको 10 पाइप्स मिलता है। अगर एक वॉल्यूम आपने खेला और वो वॉल्यूम आपको 1 पॉइंट आगे गया, ओके, ठीक है, तो इसका मतलब आपको 10 सेंट मिलेगा। मतलब 1 पाइप गया मतलब 10 पॉइंट, मतलब 20 से आपको 30 हुआ तो आपको 10 पॉइंट। ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन जैसे जैसे खेलोगे वो प्रैक्टिस में आ हाँ जाएगा। थोड़ा वो पूरा समझ में नहीं, क्योंकि हम नए जो लोग हैं ना, इसीलिए मैं बोला फॉरेक्स और इंडियन मार्केट टोटली अलग है। जो एक्सपर्टाइज इधर हो करोगे वो उधर कंफ्यूज करोगे, इधर करोगे तो थोड़ा सा ये थोड़ा बेसिक चीज है जो अलग होता है। बिकॉज इसके बेसिस पे क्या होता है ना, लॉट साइज अगर डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा मार्जिन खा सकता है अगर मार्केट के नीचे आया तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप उतना क्वांटिटी लो, अगर वो लॉस में भी गया तो आप रिकवर कर सकते हो। तो दैट्स हाउ इट वी हैव टू कीप। मतलब मिनिमम हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट तक का मार्जिन रखते हैं। अगर 5 पॉइंट तक नीचे आया तो मेरा वैल्यू, मेरा मार्क मतलब जो ये है कैश है वो क्लोज नहीं होना चाहिए। ताकि अगर कभी कभी क्या होता है, हिस्ट्री में पूरा देखा गया है कि 5 पॉइंट तक वो नीचे आता फिर से बाउंस करता है। ओके, वो क्या करता है कि पहले लोगों का एसएल खाता है और फिर मार्केट अप जाता है। तो अगर आप 5 से 6 पॉइंट को संभालने का रखते हो तो देन ऑटोमेटिकली यू कैन सी फाइनली यू गेट प्रॉफिट। 5 से 6 पॉइंट इज टू हाउ मच मनी? 5 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके पास कितना मनी है, लॉट साइज को इसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी लॉट साइज आपको मैंने समझा दिया इधर कैसे हो रहा है कि अभी आपको क्या है कि 8 यूनिट $8 इज इक्वल टू 0.1 क्वांटिटी निकल गया आपका, राइट? आपके पास अगर 50 है तो मतलब 0.05 के ऊपर आप खेल नहीं सकोगे अगर 6 पॉइंट तक खींचना है तो। ठीक है, मैक्सिमम लिवरेज कर सकते नहीं तो मैक्सिमम जो लॉस है, अगर 1000 रुपया से खेले तो मैक्सिमम लॉस विल बी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज मैक्सिमम लॉस है 1000 रुपीज। कमा सकते हो तो 50,000। गया तो पूरा गया, कमा के तो वो होगा, ठीक है, वो रोक नहीं सकते, कहने को ये है। हाँ समझ गया। ठीक है, तो इसका ये कैलकुलेशन है। मैं थोड़ा सा इसको डीप में बाद में समझा दूंगा, आज मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, आपको मैं लाइव से दिखा दूंगा कैसे होता है लाइव। आज तो मार्केट बंद है, नहीं तो मैं लाइव में दिखा देता था। ठीक है, ठीक है, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। दिस यू ऑल नो, राइट? बुल ट्रेंड होता है, बियरिश ट्रेंड होता है, और एक होता है आपका साइडवेज। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले कि ज्यादा लॉजिक यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पहले ट्रेंड पता चल गया, उसमें पैसा डालो, निकल के आ जाओ। मैं ज्यादा वैसे ही करता हूँ, और मैं नहीं तो क्या करता हूँ, रख देता हूँ आज, क्योंकि अगर मुझे पता है, सी मैं इसमें काम करता हूँ USD एंड गोल्ड पे, तो मुझे पता है कि मार्केट का बॉटम क्या है, मार्केट का अप क्या है, तो मैं पैसा उसको रख सकता हूँ, उठा सकता हूँ, उतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसको समझना पड़ता है। तो एक कोई कम्युनिटी में आपको मास्टर हो जाना है, सब नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अगर जापानीज एंड USD में करोगे तो वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बाकी लोगों को रख दोगे तो कब उसका वोलेटिलिटी आएगा, कब उसका ट्रेंड आएगा पता नहीं रहता, दिन भर जाता। तो जहां पर ज्यादा जल्दी उसका वोलेटिलिटी आता है वहां पर ट्रेड करना चाहिए। तो USD और इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी होता है कि पैसा ज्यादा बनता है।
तो इसीलिए मैं उस पर ज्यादा ट्रेड करता हूँ और मेरा कमांड उस पर ज्यादा है यूएसडी एंड गोल्ड में। ठीक है, तो अभी नमस्ते सर, कैसे हैं जी? हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने देखा ही नहीं आपको। ये वीडियो नहीं आ रहा है इसीलिए देख रही हूँ। इस पे कौन सा वीडियो? उनका वीडियो नहीं आ रहा। ठीक हमारा है, वीडियो नहीं आ रहा सर। इस ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, सो ये जो है, ये हाई ऑफ हाई एंड हाई ऑफ लो, ये आपको पता है कि बुल ट्रेंड कैसे चलता है, राइट? जो इसका जो हाई है, दूसरा वाला हाई इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका हाई इसके ज्यादा हो गया, तो अगर ये 2 बार हो गया ना, तो तीसरा बार वो जाएगा ही जाएगा। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कैसे। तो ये ध्यान में रखना, सिर्फ लो ऑफ लो। तो ये आपका बुल ट्रेंड है। अगर ये आपको पता चल गया तो दैट मींस यू नो कि यहाँ से है, यहाँ पैसा लगा दो, वो आगे जाएगा ही जाएगा। तो इसको नीचे आने तक का वो कभी 5-5 पॉइंट आ जाता है नीचे ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखने का। Then it will go. सेम थिंग ऑपोजिट है ये ट्रेंड, और एक सर्टेन टाइम पे वो लो पे लो आता है, जो मैंने बोला कि उसको ब्रेक पता है मुझे कि सपोर्ट कहाँ है, और उस सपोर्ट से फिर से वो वापस जाता है। और एक चीज क्या होता है कि मैंने फॉरेक्स मार्केट में ये 3 मार्केट चलता है ना, तो सपोज 6 बजे मार्केट ओपन हुआ तो लोग उसमें बहुत पैसे डालेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, वहां पर ट्रेड करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो वो क्या करते हैं कि जब यूरोपियन सेशन जब शुरू होने को आता है ना, तो एशियन सेशन एक बार नीचे ट्रेड मारता है, क्योंकि जहां पर मार्केट था वहां के क्लोज आके, क्योंकि जिन्होंने वहां पर खरीदा था ना, जो वो ट्रेडिंग करके निकलना है ना, तो वो पैसा छोड़ देते हैं। तो मार्केट एक बार करेक्शन होता है और फिर वहां से यूरोप सेशन में मार्केट फिर से ऊपर जाता है, बेस्ड ऑन द उस समय पे टाइमलाइन क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है, वो सब। क्योंकि जब यूरोप मार्केट एशियन मार्केट में पूरा एशियन करेंसी के साथ लेन देन होता है, अगर एशियन मार्केट स्ट्रांग है तो यूएसडी को खींच के लेके आएगा। यूरोपियन अगर आपका स्ट्रांग करेंसी स्ट्रांग है तो यूएसडी को यूरोप सेशन में खींच के लाएगा, नीचे लेके आएगा। और यूएसडी क्या करता है यूएस सेशन में, अगर वो देखता है कि ये 2 सेशन ने यूएसडी का वैल्यू बहुत कम कर दिया है, देन यूएस क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, नहीं तो उसके ऊपर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल आता है और यूएसडी को फिक्स ऊपर। तो ये सब चीजें आपको न्यूज, ये सब चीजें इसमें बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई न्यूज है क्या, मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट उसके हिसाब से ये काम होता है। क्योंकि हमारे इधर क्या है, इट इज ओनली वन करेंसी, पर आप ग्लोबली रहोगे तो मल्टीपल करेंसीज इस पे इफेक्ट करते हैं। और जब हम गोल्ड के साथ यूएसडी का काम करते हैं, जब यूएसडी नीचे रहता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, जब गोल्ड यूएसडी अप रहता है गोल्ड का प्राइस नीचे आता है। तो ये क्या था, क्योंकि यूएसडी क्या करता है, अगर यूएसडी का प्राइस नीचे जा रहा है तो दे डू द हेजिंग, क्योंकि गोल्ड से वो उसका करेंसी को हेजिंग करता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। तो ये एक था, एंड देन इट्स ऑल अबाउट योर द सेकंड थिंग इज हाई ऑफ लो। कहां पर ये स्टार्ट इंक्रीजिंग होता है एंड देन कहां पर आपका खत्म होता है, देन व्हेन इट विल गो डाउन। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग यहाँ से आप देखो, नेक आया तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, इसका जब पैरेलल पे आया, क्योंकि ये क्या बनाया आपको, आप लोग ने कल उसने सीखा था, राइट? और उसके बाद ये हाई ऑफ चला गया, ये नीचे देखो, नेक से नीचे आया, क्योंकि ये आपका क्या सपोर्ट जोन है, इसके नीचे आया मतलब ये से आपको नीचे आएगा। सपोर्ट जोन से नीचे आया मतलब जितना भी ऊपर जाओ लेकिन यहाँ पर टच नहीं करेगा, वो बात नीचे आएगा। तो दिस आर समथिंग चार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। ये मिनिमम कितना रहना सर? कौन सा चीज? इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करने है तो कितना रहना? 4000 से शुरू कीजिए, 4000 बहुत हो गया। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको और थोड़ा चाहिए तो 8000। $100 इज मोर देन एनफ टू इन्वेस्ट इन फॉरेक्स। 8000 से 500 बना सकते हो, मतलब $100 से 500 बना सकते हो अगर ठीक से। यू कैन उसमें नहीं, 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से।
नहीं, 1000 रुपए में नहीं देगा, ₹1000 $20 ही होता है, फिर $20 से तुरंत उड़ सकता है। 4,000 8,000 अच्छा आपको 4000 से खेलिए, $500 $50 मिनिमम खेलिए और फिर उसको फायदा मिलेगा। अदरवाइज क्या है, $20 में क्या मार्केट उस दिन वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहा तो आपको बहुत पैसा दिखेगा, नहीं तो $20 जाने में तो 2 मिनट भी नहीं उड़ जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा लीवरेज नहीं ले पाओगे ना, 5 पॉइंट का लीवरेज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई हैव ए मल्टीपल टेक्निक्स, ये भी आप देख सकते हो कि मेरा पास कुछ टेक्निक्स है दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। यहाँ पर मुझे इंडिकेशन तुरंत मिल जाता है कि मार्केट डाउन है कि क्या अप है, मैं इसको फॉलो करता हूँ और ये देखो मार्केट अप है, मार्केट डाउन है, मुझे पता चल जाता है कहाँ पे खरीदना कहाँ बेचना। सो आई हैव सम इंडिकेटर्स, तो आई एम यूजिंग इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को रोज खेलने को टाइम नहीं मिलता है। तो देखियो, मैं अभी बोल रहा था ना मार्केट कैसे ट्रेंड डाउन हो रहा है। आप लैपटॉप पे है कि इस पे है? लैपटॉप आपने कोई और भी खोल रखा है क्या, जूम या कुछ और? देखती हूँ। उसको बंद कीजिए। दूसरा कोई आपने जूम या गूगल मीट खोल रखा है, उसको बंद कर दीजिए, आपका अपने वीडियो आ जाएगा। ओके Am I audible now? यस यस यस। मैं आउट हो गया था क्या अचानक से? हाँ, आपका नेटवर्क जो है चला गया था। ओके, पर ये जूम में अपने आप चलता रहता है, बड़ी यू आर द होस्ट, तो भी चलता रहता है ये, बड़ी आप चलेंगे तो वीडियो खत्म होने जाना चाहिए। नहीं, नहीं मैंने वो सेटिंग नहीं रखा ना। ओके। ओके, सो नाउ is my screen visible now? यस यस। Okay, you can see the graph. कैंडल चार्ट। एक मिनट सर, एग्जिट करके आती हूँ सर, एक ही Okay, एग्जिट। okay, okay, ठीक है। So अभी आप यहाँ पर ट्रेंड क्या बोल रहे हो कि what is the trend now? यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसा है? ऐसा एक डाउन ट्रेंड इट्स ओके। ये ट्रेंड कैसा है? ये ट्रेंड डाउन 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 डाउन। कैसे समझे आपने डाउन है? कैसे समझे? ग्राफ है ना, अप डाउन, लोअर लो, लोअर हाई। यस, ये देखो, ये तो डाउन है, ये जो आपने लाइन खींचा है। ये हाई था, ये लो था, ये लो था, लो था, देखो नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी आपको अभी ये मेरा जो पिक पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा? यही तो मैजिक है, करेक्ट? ये तो कैसा मालूम पड़ेगा आपको? Suppose it has gone now we are going to buy over here. How do you know that you can buy over here? ये देखो, आपको देखो समझ में आया कि इसका, राधा जी आपका क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बाई करना है सेल करना है। ये देखो, इसका आपको इसका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखा आपने, ये पीक है, ये पीक आपका पहला कहाँ गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो कहाँ पीक है ये, ठीक है आपको? हमें ऑडिबल नाउ? ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। इसका मेरा ब्रेक हो रहा है क्या? इट इज मी और नहीं है अभी, क्लियर नहीं है? आपका आपका हाँ। आपका ही है सर। Am I audible now? अभी सही है क्या? अभी सही है? अभी भी नहीं है? ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अभी भी ब्रेक हो रहा है? आप दोबारा बोलिए।
अभी अभी अब ठीक है, अब ठीक है, अभी अब ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है। अभी आप देखो कब आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से वापस आएगा। यू कैन सी दैट ना, ये देखो यहाँ पर जो देखो इसका पहला का जो हिट करके कहाँ वापस आया था ये आपको पता चल गया इधर, राइट। ठीक है, तो अभी अभी आप देखो, आप देखा कि मार्केट कैसे किया। मार्केट यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस गया था, नेक्स्ट टाइम भी यहीं से बाउंस गया, दिखा आपको, ऐसे रिवर्स गया कि नहीं, ये लाइन दिख रहा है आपको, आपको हाँ दिख रहा हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख है। रहा है, सही कह रहे हो। 2089 में लास्ट टाइम इन द सेंस ये डेट कब का है, इट इज इसका डेट इसमें दिक्कत हो रही है। हाँ ये देखो दिसंबर मंडे 4 दिसंबर 23 को 2089 में ये यहाँ पर पिक किया था, और फिर ये वाला चीज सेम टाइम पे ये अचानक से इसको बुलाओ। अभी ये देखो 28 दिसंबर को सेम रिपीट हुआ। इसका मतलब अगर आपको ये पता है कि चार्ट में से किसी दिस इज द टाइम फ्रेम वेयर मार्केट रिवर्स, तो जब वो वहां पर पहुंच गया तो वहां पर आप एक चांस ले सकते हो, क्योंकि वहां पर गया तो 100 पॉइंट्स तो नीचे आएगा ही आएगा वो, देन मे बी बाउंस। तो आप वहां पर सेल का 50 पॉइंट तक तो मिनिमम लगा सकते हो। अगर वहां पर आपने 1000 रुपया डाल दी, मतलब एक 1000 यूनिट खरीद लिया, मतलब अगर आप सपोज 0.1 यूनिट भी खरीद लिया तब भी 5000, मतलब 50,000 का तो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अगर $100 का आपने लगाया तो आपको 500 से $1000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसका मैं कैलकुलेशन बाद में समझाऊंगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर। सॉरी, हाँ आप सेल भी कर सकते हैं ना इसमें, बाय एंड सेल दोनों है क्या? इसमें सेल भी कर सकता हूँ। इसमें Okay. आप अभी ये पोजीशन आपको सेल करना है, बाय करोगे तो लॉस हो जाएगा। नहीं मैं वही पूछ रही हूँ, मेरे को मालूम है स्टॉक्स के बारे में मालूम है, फॉरेक्स के बारे में नहीं मालूम, इसीलिए बोल रही हूँ। हाँ तो फॉरेक्स में भी बताया ना मैंने आपको, कहाँ पर आपको सेल और बाई करना है यहाँ दिखाया ना मैंने या अभी तो मैं वही दिखाया आपको कि आपको पहले ये पोजीशंस पता करना है कि लास्ट टाइम वो कहाँ से वापस गया था। अगर वही पोजीशन पे गया तो आपको पता है कि वहां से मार्केट एक बार तो बाउंस रिवर्स करेगा, और वहां पर आप सेल ऑर्डर डाल दीजिए और मिनिमम 550 पॉइंट्स नीचे तक आप वेट कीजिए, फिर वो वहां पर सेल आउट कर दीजिए। और आपको तो अगर आप $100 का लगाएंगे तो आपको मिनिमम 1500 तो इजीली आपको मिल जाएगा। और चार्ट ये मेरा हो रहा है कि आपका हो रहा है? अभी 15 मिनट चार्ट आप क्या से हो रहा है सर? मेरे से हो रहा है क्या? आपके यहाँ नहीं हो रहा है सर। अरे आज क्या हो गया नेट का? ठीक है, तो ये मैंने आवरली चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है वो ट्रेंड पे है, और ट्रेंड पे अगर आपको काम करना है तो आवरली चार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमम कमाना है, तो देन यू नीड टू बी ऑन द ट्रेंड साइड। है ना, उनके साथ बात कर लिया। ठीक है, ओके। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉपर्ली हो रहा है। ओके ओके बाबू नहीं था कोई? ओके तो अभी और एक चीज बता रहा हूँ, तो हाउ टू जॉब कर, तो मैं ये आपको जो पत्र आया हुआ है पहले, तो उस पत्र के हिसाब से जवाब बनाओ। चलो ये ले जाओ, आप म्यूट कर दो प्रदीप जी। हाँ प्रोफाइल दिखाओ। ये गलत बनाया है, बोला कि कोई पहले कुछ नहीं आया करस्पॉन्डेंस, इतने सारे करस्पॉन्डेंस पहले हो रखे हैं, हमने पुलिस को दिए हैं, ये दिए हैं, वो पढ़ करके फिर दोबारा बनाएगा। ओके, सो आई एम जस्ट म्यूटिंग एवरीबॉडी नाउ। बटालियन हेडक्वार्टर में इसकी खबर ही नहीं है, वो कहाँ से बताएंगे?
आपका ऑलराइट आई थिंक राइट साइड में 3 डॉट हो गए, 3 डॉट हो गए, उस वहां से होते, या ऊपर ऊपर अपने वहां पे वहां से कर दो ना उनको। हाँ हो गया हो गया हो गया। ओके ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट ओके मैं वाज या सो ट्रेंड कब होता है कि कंपलसरी ब्रेक प्रीवियस हाई एंड हाई टू मेक एन इंक्रीज और कंपलसरी ब्रेक प्रीवियस हाई एंड लो टू गो डाउन। तो ये दोनों के बेस करके ये आपका हो जाता है हाउ ट्रेंड, राइट। मतलब हाई एंड हाई को आपको अगर ब्रेक कर दिया तो दैट मींस वो ऊपर जाएगा, अगर हाई एंड लो को कर दिया तो डाउन। ये थ्योरी आपको रखना है। और देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यू ऑल नो, कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है, दिस थ्योरी यू नो। बट यहाँ पर मैं आपको जैसे अभी दिखाया रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, राइट। उसके नीचे वो वापस गया तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट भी नीचे दिखाया, दैट्स हाउ इट इज वर्क। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा कि दिस इज द बिगेस्ट थिंग, द साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में ग्रीड एंड फियर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर कभी क्या होता है कि आपको लॉस हो गया तो आप सोचते हो कि पूरा लॉस होगा, ऐसा नहीं है। मनी मैनेजमेंट इज द बिग थिंग, आई विल टीच यू मनी मैनेजमेंट लेटेस्ट स्टेज ऑफ इट। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग, मतलब साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। एंड एज यू नो, एंड मतलब फॉरेक्स में भी सेम चीज है, क्योंकि फॉरेक्स में बहुत वोलेटिलिटी होता है, पैसा बहुत जाता है। आपको तुरंत दिखा रहे मेरा तो इतना पैसा हो गया, आई नीड टू वेट, तभी आपका पैसा सब खाली हो सकता है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय टारगेट। जैसे आप वो टारगेट को हिट कर गए, आप निकल जाओ मार्केट, उसके बाद आगे जाए पीछे जाए आपको फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे रहोगे तो कंसिस्टेंटली पैसा बनाओगे। आज मैं पैसा बनाता हूं क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू फोकस मोस्टली इनटू इट। पर जब मैं बैठा तो पैसा कमा लेता हूं, मेरा वही गोल रहता है। So that's how you should work, and that's the message I'm going to pass. So yes, so this is the forex basic, and it has many more.